What's your take on vaping? तो आपको जो करना है आप होटल में करो, लेकिन स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम के अंदर मत करो यार, प्लीज। Ryan Nicholton with the highest individual score for MI, quickest century in IPL history for MI. He has given us good enough runs to score. Rohit Sharma is in a position where he probably could play and he's sitting back saying I don't want to be part of this thunder. हम MI को ना एक आदत है एक बंदे को थ्रो अंडर द बस करने की। फिलहाल के लिए तो सूर्यवंशी को अभी भी रेट नहीं करूंगा। तो ये बात तो प्यार से भी बोल सकते हैं। ओह माय गॉड। मेरा पता है क्या सपना है कि अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी एक मैच में ओपन कर रहे हैं इंडिया के लिए, फ्लैट ट्रैक पे बिल्कुल एकदम मेरे जैसी गंजी विकेट, ठीक है, और दोनों का बस एक कैच छूट जाए, एक कैच, और फिर मैं देखना चाहता हूं कि क्या तबाही मचाएगी। 3 लाख इतिहास गवाह है कि नंबर 4th स्पॉट हमेशा सरप्राइजिंग होगा। लास्ट के 2 डेज के मैचेस होंगे ना जब लीग स्टेज के, उसमें से समझ आएगा। सो आई फील Hello and welcome to Overthrow, brought to you by Cover Drive. I'm your sad host and those with the most, Chinmay Sharma, aka Scubachino. What has happened yesterday? Lots to discuss. A week full of interesting cricket, to say the least. Some good, some bad, some ugly. Mr. Sanjeev Goenka celebrated his birthday and got the most forced happy birthday messages. But listen, guys, we get to all of that. It's a lovely show. We've got one new guest here. But before that, let's go to the USP of our show. We've got a live guest, as always. Big shout out, boys! My vicious dogs of war. And we've got 3 MI fans, guys. आज खुन्नस में आयो कि sadness? No, sad, खुन्नस सब इधर निकालना, okay? And we've got our lovely guest here. 3 S's in the house today. Our recurring virus who I love. Shantanu, what's up, brother? I'm good. How are you, man? Bro, it's like everywhere we go, we're meeting each other. Exactly. Yeah. I'm loving it. And then, of course, all the way from Hyderabad, we've got Sandy, my guy. What's up, Sandy? Welcome back. All good. Yeah, of course it is all good. You enjoyed yesterday, didn't you? It's good, yeah. Yeah, stay humble, huh? Stay humble. And then, of course, bro, do you respond to your real name, or is just Baba, Drog Baba, Crick Baba? How many Babas are you, my man? Whichever Baba you like. I'm open for everything. I like him all, bro. I like Baba. Welcome to the show. I know you've come so before, but for first time we're meeting. सबसे पहले तो मैं ही आया. Bald before beauty is what I say, man. And thank you so much for doing this, buddy. Guys, so you guys have done this season before. यार आपको बता दूं that I'm like a cesarean here. You know, I open up cricket and then remove the scoop and talk about hard stuff, authentic cricketing stuff. We break down analysis, analytics. So let's deep dive into some hardcore cricket. What's your take on vaping? I mean, it's a personal choice and it's okay unless someone sees you doing it. And a 64 number jersey comes in front of you to cover it up. So I think तब तक ठीक है. Yeah, Shantanu clenched his butt. Then Shantanu बोल दे भाई. मैंने नहीं छुपाया. I don't vape. It's absolutely illegal. I have not kept it anywhere. But again, Jaiswal saving Riyan Parag as always. Yeah, so yeah, good to see that. I just want Vaibhav Suryavanshi out of his reach. Please, दूर रखो हाँ, बच्चे दूर से. रखो. इस संगत से दूर रखो. But then listen, I'll give you my 2 bits. और यार, everything is personal. I think we've all done shit that. Thankfully, my generation, there's only rumors, no video, authentic proof. क्योंकि वो टाइम मोबाइल का जमाना नहीं था. And I think just be smart enough not to get caught. अगर आप स्टेडियम के अंदर हो, So देखो आपको जो करना है आप होटल में करो, लेकिन स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम के अंदर मत करो यार, प्लीज कम ऑन. yeah, and I know it's a little petty कि हम लोग इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, but यार it's a part of cricket. And do you think the 25 lakh rupee fine, which mostly the team will pay, Sandy is enough? या ban तो लगना चाहिए. नहीं मतलब आप कानून देखो क्या हो सकता है उसमें. It is not a level 2 or a level 3 offense. So as per the rules, it is a level 1 offense. So if you are fining a person, fine it based on the rules, not based on ethics or based on what you think or based on what society thinks. Correct. तो उसके हिसाब से no, but नहीं, but अगर फाइन लगाना ही है तो जो रूल बोलता है उसके हिसाब से लगाओ. एंड 25 लाख उसको फाइन लगाए. बट एज यू सेड उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. unless he realizes that ये उसकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा और उसको निकाल देंगे. His chances of making it the Indian team might also be affected. क्योंकि BCCI ने एक स्टेटमेंट दिया. Bad PR नहीं चाहिए. Bad PR नहीं चाहिए. BCCI ने एक स्टेटमेंट दिया कि देखो we will make sure
that these kind of incidents will not occur again and recur again and all that stuff. So उसको थोड़ा control में रहना चाहिए था. Fair enough. I think it's too petty a conversation. Let's move on. I just want to get a reaction out of you guys. But since you're wearing that jersey, I'm getting PTSD right now. No, I'll tell you what. No, it was just a normal thing for us. No? 240 चेस करना दूसरी बात गेस्ट है. है तो बहुत आदर सामान देना पड़ रहा है, but my shoes are slowly. 240 तो दूसरी बार हमने चेस कर दिया यार. आपके खिलाफ तुमने 277 मारा यार. क्या बात कर रहे हो? 240 is 37 less. And thank you for joining us, guys. That is it. I'm done, bro. I tell you what, you had a co-guest last time, Jake, and I swear to you, bro. Let's see. I'm gonna put this close. He's literally just sent me a voice note 10 minutes back. Chidu, Chinmac, the big Sham. Haven't heard from you last night, mate. Just checking in. Everything's okay. Seriously, mate, you talked a lot of a huge game, and yeah, I don't think it's really come to fruition from yourself. To make chuck your fruition, bro. When you walk it in today, mate, or just wherever you're going, just please make sure you mind the gap. Oh, that. He should have been happy. He's a Travis Head fan. He's an asshole, is what he is. Jake, if you're watching, suck it, bro. I hate you. No, but just help me break it down, yaar. Kal, and I will come to you, Shantanu, because I've been saying this since episode 1 that it's not the problem, but I think Hardik Pandya's captaincy is a big question mark. Players might not be supporting him. I'll come to you, so I'll let you think about it. Where did you see MI losing it completely? Yeah? Because 240 plus, yeah, last 4 overs we didn't score as many as we should have. Where do you see us? Firstly, Bumrah should have bowled the first over. Okay. That is the first over. I understand Bolt को new ball देना है, 2 left-hander से थोड़ा बहुत swing कर लेगा and all of that stuff. But Abhishek Sharma knows what Bumrah is. थोड़ा बहुत उसके हिसाब से तो खेलना चाहिए था. Second thing what I felt was whenever the bowler came for a second spell, Gazanfar हो जाए 2 विकेट निकालने के बाद या फिर बुमराह हो जाए when he came to bowl the last over of power play, I think the second spells were gone case scenarios. There was no plan at all. यार आपके 2 विकेट गिर गए, हार्दिक आके अच्छा ओवर करता है, ट्रेविस हेड को बाहर भेज देता है. You literally have 2 new batters at the crease and you're bowling short balls. You are getting Ashwini to sneak in and lose over and he bowls 3 short balls to Klaasen. एक ही जगह पे शॉर्ट बॉल डाला उसने, एक एक्स्ट्रा कवर पे मारा, एक मिड ऑफ में मारा, एक मिड विकेट में मारा. You think there was a captaincy error in bowling composition, or do you reckon it was just bad performances by No, it is all bad performance. I don't see captaincy problem there. उसने जो कुछ करना था उसने किया है. I mean, you can still debate and say शार्दुल ठाकुर को क्यों लाया गया फील्ड में. उसने ना बॉलिंग किया है ना फील्डिंग किया है, एक तो मिसफील्ड भी कर दिया था उसने. बट अगेन कहाँ पर लाता था? He had Ashwini was the one who has taken wickets in the previous match. तो उसको एक ओवर देना बनता था वहाँ पर. So I will not say it is a captaincy failure or anything. But a bowler taking 2 wickets and feeding Klaasen with short balls, Gazanfar, Bumrah bowling the 6th. मैं इस पर डिसएग्री करूंगा क्योंकि कैप्टनसी फेलियर बहुत ज़्यादा है. जब 2013 में पॉन्टिंग परफॉर्म नहीं कर रहा था तो इतना बड़ा प्लेयर होके ही केप्ट हिज ईगो असाइड फॉर मुंबई इंडियंस, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो अपना कैप्टनसी छोड़ेगा और किसी एक डिजर्वेबल प्लेयर को देगा तो ही लीड फ्रॉम द फ्रंट. और रोहित शर्मा का तो ऐसा ही हुआ क्योंकि रोहित शर्मा इतना सक्सेसफुल है. क्यों? अगर पॉन्टिंग वो वक्त पे छोड़ता नहीं कैप्टनसी तो आज इतने ट्रॉफीज भी नहीं होते. और अगर आप 7 मैचेस हार गए हो, अगर इतने बड़े आप अभी सूर्य कुमार T20 वर्ल्ड कप कैप्टन, वो भी नहीं है कैप्टन. रोहित शर्मा तो छोड़ो, अभी है ही नहीं. अगर आपके पास इतना ईगो है, आप आए किसके लिए? मुंबई इंडियंस को जिताने के लिए. एंड अ प्लेयर इज नॉट बिगर देन द टीम, कभी भी नहीं हो सकता. तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अगर वो नहीं खेल रहा है, इफ सूर्य कुमार नहीं खेल रहा है, भाई बिठा दे, दूसरे को चांस दे. I will say Ricky Ponting was actually an extra weight in 2013 because 4 foreigners का रूल भी था. वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहा था तो they could have gotten another foreigner in अगर Ricky Ponting जाता तो. And then there was a discussion. Ricky went to John Wright and Anil Kumble went to Rohit Sharma and captaincy changed. अगर यहाँ पे ठीक है, अगर हार्दिक को हटना है तो कौन आएगा कैप्टनसी करने? Sky, Bumrah. Sky क्या खेल रहा है? Sky से तो अच्छा हार्दिक ही खेल रहा No, I'm saying as a leader. है. As a leader, I don't know. What do you reckon, buddy? I'm not sure. I mean, I don't know. And I know you're an MI fan, so you have to be a little careful about what you say. So, Here's the thing. I think हम MI को ना एक आदत है एक बंदे को थ्रो अंडर द बस करने की. okay. आई अग्री विद योर पॉइंट कि इतने मैचेस से हार्दिक का परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन लास्ट मैच में हार्दिक का परफॉर्मेंस आया विद द बैट एंड विद द बॉल. ही वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल. बाकी के बॉलर्स देखो तो वो उसने अकेले ने रन्स लीक नहीं करे. सो मुझे कहना है कि अगर आप उसे लिटरली आप उसे बोल रहे हो ना, दोष दे रहे हो ना, तो अच्छा किया तो उस पर भी बोलो. Baba, tell me on just a macro perspective से, अगर आपको as right now, because
I found out very recently that this yesterday was our 4th loss in a row at Wankhede, which जो हमारा fortress हुआ करता था. And throwing under the bus, I agree. And easiest target is your captain. What would you rate Hardik Pandya's captaincy right now on a scale of 1 to 10? यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनीथिंग ऑफ हार्दिक पांड्यास कैप्टनसी बिकॉज बात क्या है ना कि जब आप किसी भी टीम को देखते हो ना स्ट्रगल करते हुए इन एनी स्पोर्ट, तो अगर जब तक आप पिन पॉइंट कर सकते हो ना कोई चीज कि भाई ये गड़बड़ है इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन, जैसे दिल्ली कैपिटल्स लास्ट सीजन एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उनका टॉप 3 फिक्स नहीं था, रेस्ट ऑफ द टीम वाज फाइन, वो उसी वजह से स्ट्रगल किए, दे हैड अ गुड स्टार्ट बट वो प्लेऑफ से 2 पॉइंट दूर रह गए या नेट रन रेट से बाहर हो गए थे, जो भी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी टीमों की कुछ प्रॉब्लम्स थी, किसी के पास स्पिन बॉलिंग अटैक नहीं था, किसी के पास ओपनिंग पेस बॉलर्स अच्छे नहीं थे. मुंबई इंडियंस ने 22 प्लेयर ट्राई कर लिए अपने स्क्वाड में ऑलरेडी, दे हैव गॉन विद 4 डिफरेंट बैटिंग कॉम्बिनेशन ओपनिंग कॉम्बिनेशंस. कल एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन चला है उनके लिए, विल जैक्स और रायन रिकल्टन विद द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर फॉर एमआई, क्विकेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल हिस्ट्री फॉर एमआई. Come on, guys. All the MI fans. Some love at least. He has given us good enough runs to score. कुछ अच्छा. Shut your mouth right now, bro. You had a chance to speak. Come on, man. तो अब प्रॉब्लम यही है, जैसे शांतनु ने ना बहुत अच्छी बात बोली है कि मुंबई इंडियंस ने है ना एक बहुत अच्छी टैक्टिक ये थी कि जो इंडियन टीम का कोर है आपने उसको रिटेन किया, बट ये 2 धारी तलवार है. अगर यही प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते हैं तो हाउ डू यू मेक चेंजेस इन दोस टीम्स. सूर्या का पॉइंट बिल्कुल एप्ट है, इतना खतरनाक पीआर चलता है. एक तो हार्दिक पांड्या, यू ऑल नो कि जब कैप्टनसी का ट्रांजिशन हुआ था रोहित शर्मा से हार्दिक पांड्या को लिटरली बू किया जा रहा था. इट टुक अ वर्ल्ड कप विन एंड दैट ओवर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टू रिडीम हिमसेल्फ, ऑल्दो पूरा वर्ल्ड कप अच्छा खेला था हार्दिक. उसके बाद लास्ट सीजन ही टुक फ्रेंचाइजी टू प्लेऑफ्स. लास्ट सीजन भी स्टार्ट तो अच्छा नहीं हुआ था, क्या 1 out of 5? I think we won first. एंड दैट मिचेल सैंटनर की वो मैजिकल डिलीवरी टू करुण नायर एंड द होल सीजन फ्लिप्ड. ठीक है, तो ऐसा है कि अभी भी इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बट लास्ट सीजन भी सिमिलर सी सिचुएशन थी. आई एम जस्ट सेइंग कि somehow the players who need to step up are not stepping up. I don't want to divulge too much into it, but I feel to jump into your point that there is a little bit of undercurrent. Team is not responding well. I don't know, bro. I'm going to take a step further and say maybe Rohit Sharma is in a position where he probably could play and he's sitting back saying, I don't want to be part of this daldal. नहीं, I don't think. Again, there is no base to what I'm saying, but it's not the first time it would have happened in the IPL. Right? Like Paddy Cummins, I don't see him injured. I think it's just stress and workload management. These things happen. यार इट इज सो नॉट रोहित शर्मा नो ऐसा. नहीं, ऐसा तो नहीं है. पेन दिखता है उसके आंखों में यार बेचारे का. बट आई थिंक जो थिंकिंग थी ना वो ये सही थी, एज इन कि वो गलती नहीं करना चाह रहे थे जो सीएसके ने धोनी के साथ कर दी, कि एक प्लेयर फ्रेंचाइजी से बड़ा हो गया एंड नाउ दे वर स्ट्रगलिंग टू लाइक फाइंड एनी न्यू फेस फॉर द फ्रेंचाइजी. बट जो हैंडओवर था ना कैप्टनसी का, वो बेटर तरीके से हो सकता था. अब आपने जैसे कैप्टनसी की बात की है यार, हार्दिक वॉज गुजरात टाइटंस, मतलब ही वॉज नॉट द कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस, ही वॉज गुजरात टाइटंस. 2 बैक टू बैक फाइनल्स खेले, वो 2 बॉल में 10 रन नहीं बनते हैं, 2 लगातार टाइटल जीत जाती गुजरात टाइटंस. जैसे श्रेयस अय्यर आज पंजाब किंग्स के साथ ऑक्शन टेबल पे बैठता है, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के ऑक्शन टेबल पे बैठता है और कहता है भाई मैं अपनी टीम बनाता हूं, ये मेरा एम्पायर. तो भाई आई फील जो हार्दिक मतलब जैसे आपने श्रेयस अय्यर का बोला पंजाब के साथ, व्हाट आई थिंक हार्दिक जीटी में वो कर सकता था जैसे रोहित शर्मा ने एमआई के लिए किया, सीएसके के लिए जो धोनी ने किया. ही कुड हैव बिल्ड दैट लेगेसी विद जीटी, और उससे लीग का लेवल भी और अच्छा होता. हाँ एग्जैक्टली, लाइक एक बड़ा नाम अटैच टू अ टीम एंड प्रॉपर, लाइक जैसे ये लोगों ने अपना लेगेसी क्रिएट किया है, वैसे ही हार्दिक अपना खुद का एक लेगेसी वहां पे जीटी में बहुत इजीली, मतलब 2 साल में 2 फाइनल, एक जीत लिया, एक इतना क्लोजली हार गया, तो वो उसके पास एक चांस था, वो सब छोड़ के वो वहां पे एमआई आ गया. उसके बाद जो भी हुआ वो हुआ, बट अब क्या एक्सक्यूज दोगे तुम? अब तुम्हारे पास सारे सुपरस्टार्स बैठे, लाइक जो भी प्लेयर्स है हमारे पास, दीज प्लेयर्स वॉक इनटू द 11 ऑफ एनी अदर टीम. मतलब एनी डे कोई भी टीम चाहेगा कि भाई मेरे को एक विल जैक्स दे दो, या मिचेल सैंटनर दे दो, या सूर्या दे दो, या बुमराह दे दो, कोई भी चल जाएगा भाई. अगर बुमराह की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, चलो बुमराह के यूजेज पे हम बोल सकते हैं, हार्दिक को ब्लेम कर सकते हैं कि नई बॉल देनी है, क्योंकि गुजरात के अगेंस्ट जब बुमराह को नई बॉल दी तो उन्होंने अच्छा पहली बॉल पे विकेट ले लिया साई सुदर्शन का. बट अगर स्काई के रन नहीं आ रहे हैं यार, जो आपका मतलब लास्ट सीजन ही वाज द एमवीपी ऑफ द टूर्नामेंट. आई थिंक जब से लास्ट 2021 में हमने जब जीता था, उसके बाद से 2020 में, उसके बाद से ऑलमोस्ट एवरी सीजन स्काई ने 500-600 रन, इवन लास्ट सीजन 700 प्लस रन दिया था. तो ठीक है, आई एग्री कि वन ऑफ सीजन सबका आ सकता है. Even though he had a subpar World Cup, you expect him in the IPL to come in. But exactly the kind of way he plays at the Wankhede, मतलब Wankhede is very much well suited to Sky. मतलब ऐसे बोलते हैं कि यार Wankhede में तो Sky बना ही यूएसए के अगेंस्ट भी बचाया था स्काई ने.
अब वो भी नहीं आ रहा है, तो समवेयर डाउन द लाइन वी नीड टू फिगर आउट कि भाई व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। तो मुंबई आज के तारीख पे से मैच नहीं हार रहा है, अपनी लेगेसी भी हार रहा है, इज व्हाट आई फील। लेगेसी की बात छोड़ दो, बट लेट अस थिंक अबाउट टैक्टिक्स आल्सो। हम हार्दिक पांड्या के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। बंदा जो 100 मारा है तिलक वर्मा, कहाँ खेला नेक्स्ट 2 मैचेस, वेयर वाज ही प्लेइंग? और शेरफेन रदरफोर्ड की यूसेज क्या, आप उसको कहाँ से क्या करवा रहे हो उसके? नमनदीर को इतना shuffle नमनदीर कर रहे को हो। ऊपर क्यों शफल करवा रहे हो? सो यू हैव नो पर्टिकुलर प्लान फॉर अ पर्टिकुलर प्लेयर। Who do you blame for that? The management or the captain? Obviously, everybody should be involved. No, एक कैप्टन को ब्लेम नहीं कर सकते. What is महिला जयवर्धने doing? What are the senior pros doing? अगर कल आपने मैच देखा हो तो हर एक बॉल के बाद सूर्य एंड बुमराह वर इन डिस्कशन विद स्काई यार। ऐसा नहीं था कि हार्दिक खुद डिसीजन ले रहा है, हर एक बॉल के बाद वो लोग आके बात कर रहे थे। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में महिला खुद बाहर आ गया था बात करने के लिए। रोहित वाज आल्सो टॉकिंग। Yeah, Mahenga came out running के लिए अपने bowlers के लग रहे भाई भागो। So yeah, it is not the question of throwing a particular player or blaming a particular player. It is about the entire Collective team. failure. Collective failure. As Baba said, 22 of 25 people. ये तो LSG करता था यार। Yeah, and I'm realizing as this conversation is going on, I'm leaning forward, I'm getting upset. It's not just a Mumbai Indians show, so let's move on before I suffer, man. Bro, we are in top 3 and you can talk about SRH forever. there is an SRH fan there. He's not. He's a Mumbai Indians fan. He's just saying the jersey today, bro. So suck it. No, let's move on to that run out, man, because Raghuvanshi is. Yeah. It wasn't यार। बुलाओ Obstructing the field नहीं था यार वो। रोहन पंडित को यहाँ पर बुलाओ, जितने गाली देना उतने गाली दो उसको। और ये लोग वाइड के लिए इतना टाइम लेते हैं, वो ओवर के ट्रांजिशन के ब्रेक में डिसीजन दे दिया। एंड I have so many questions for you all about this because यार पहली बात up and coming player. KKR team I don't particularly support, especially as an MI fan. There's always, but यार it broke my heart. I like यार Rishabh Pant withdraw that appeal. एग्जैक्टली No, but I'll have another take on this. Go on, please. See, अगर आप फील्डिंग कैप्टन को बोल रहे हो कि प्लीज विथड्रॉ द अपील, दैट इज नॉट करेक्ट। सी, अगर बंदे ने अपील किया, Not please. Could नहीं नॉर्मली Okay. नो, अगर बंदे ने अपील किया, एम्पायर्स हैव अ डिस्कशन, दे गो टू थर्ड एम्पायर एंड देयर इज अ डिसीजन, वो उसके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपील वापस ले। सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद एलएसजी। Not responsibility, but again, see, spirit of the game is not responsibility of the True, game, right? but yeah. I'm with you कि आपको आपकी जिम्मेदारी, you don't have to. Yeah. बट अगेन किसने थ्रो किया? शमी भाई ने थ्रो किया। दैट्स व्हाट ही सेड। शमी ने थ्रो किया, शमी फेल्ट, उसने डायरेक्शन चेंज किया। अभी अगर ये अपील विथड्रॉ करता तो उसको लगता है कि ही इज एक्चुअली नॉट गोइंग विद शमी। उसने एक बार एक्चुअली किया था, दिग्विजय राठी ने उसको जितेश शर्मा को नॉन स्ट्राइक पे आउट किया था, तब उसने नॉट आउट करके अपील वापस ली थी। सो देन आई थिंक प्रोबेबली रियलाइज दैट ठीक है यार, फील्डर ने अपील किया, फील्डर को लगा। अब अंपायर्स को थर्ड अंपायर को डिसीजन के लिए भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अंपायर्स ने डिसाइड कर लिया। When third umpire sees it in multiple angles, which he has not, but अगर उसने देख लिया और उसने आउट दे दिया, तो why should ऋषभ पंत? You think he was out though? No, absolutely not. Is there anybody else who thinks he was out? नहीं। Okay. अब वो इंटरप्रिटेशन पे जब आ गया अंपायर के, तो उसको लगा आउट है, जबकि हमें सबको यहाँ से लग रहा था कि नॉट आउट है। तो वो चीज मुझे समझ नहीं क्यों आई। लग रहा था? क्योंकि हमने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड यूसुफ पठान वाला देखा है, जब वो एक्चुअली बीच में आया था, एंड दैट बॉल वाजंट इवन हिटिंग टू बी तो वेरी। वो रूल बदल गया ना, अभी हिटिंग का कोई रूल। So for these things, for me, I genuinely believe what Anil Chaudhary says. Oh, yeah. And he had his take on this, and he said that exactly कि आपको हमेशा जो ऑन फील्ड अंपायर है, he can see it in real time. In slow motion, even if you do this and one step to the right, it looks like, oh shit, he saw it. Right? And he said, in his humble opinion also, not out देना चाहिए था. And he said, according to the laws, if you purposely move in the direction, it's which I don't think he did. वो डाइव मारते वक्त तो शमी को थोड़ी देख रहा था यार। When the dive was coming, he was looking at the stumps, तो उसको मालूम ही नहीं था कि डाइव कहाँ से आएगी। But you don't think Pant should have? You're okay with Yeah, Pant I'm not? okay with Pant not withdrawing that. Because it's a game at the end of the day. Let's talk about this Hazelwood guy, man. What is this guy up to? Hazel God. Hazel God. Is he for you lot, Baba, the best bowler in the IPL right now? Yeah, for sure. And by a fair distance? Yeah, I mean it's the most lethal opening bowling combination in the IPL by far. Bhuvi and Hazelwood दोनों. Do you reckon RCB ends up top of the table at the end of it? Yeah, they might. मेरे तो top 2 हैं दोनों, पंजाब RCB फिर से। मेरे तो पहले चार, because Shantanu had a very interesting take. He thinks one of them is going to slip out. So I'm going to come to you. Give me a top 4. जो अभी है। As of now, जो अभी है वही होने वाला है। As is, no one slips. Maybe मतलब गुजरात are the closest, but मुझे लगता है यही top 4 रहेगा। Okay. Sandy? No, कल अगर मुंबई जीत जाता, which they didn't, अगर मुंबई जीत जाता तो शायद कुछ बात बन जाती SRH गिरने की, बट अगर नहीं होने वाला, I think the top 4 will stay. I know there is one team which can create an impact, but I have very less hopes on them. CSK? CSK? Really? No, I don't think they'll make, but they can definitely challenge. Okay. I don't think they're making it. They might be 5th, but they won't. Shantanu! इतिहास गवाह है, ठीक है, इतिहास गवाह है
कि नंबर 4th स्पॉट हमेशा सरप्राइजिंग होगा. लास्ट के 2 days के मैचेस होंगे ना जब लीग स्टेज के, उसमें से समझ आएगा. सो आई फील एक सरप्राइज एंट्री होगी. अभी वो ब्लू होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन येलो हो सकती है. ब्लू कौन सी ब्लू? एलएसजी वाला ब्लू? नहीं, एलएसजी कहां पे ब्लू है? एलएसजी तो बीच में ही है. दिल्ली वाला blue. एलएसजी इज नॉट ब्लू ब्रो. आर यू ओके? क्योंकि इस पे मेरा एक कॉन्क्रीट टेक है कि जो टॉप 4 अभी वही होगा, बिकॉज ये एक ऐसा सीजन जा रहा है कि इसमें टॉप 4 और जो बाकी के 6 टीम है उनमें जो क्वालिटी का गैप दिख रहा है विद एवरी मैच, वो इतना ब्लेटेंट गैप दिख रहा है कि वी आर वेरी श्योर कि ये टॉप 4 मैचेस आराम से फिनिश कर देंगे, वॉट एवर द स्कोर भी, या फिर अगर दे आर पुट इनटू बॉलिंग इन द सेकंड इनिंग्स एज वेल. सो इतना ब्लेटेंट क्वालिटी गैप कभी दिखा नहीं है. सभी के लूपहोल्स है जो अभी दिखाई दे रहे हैं. हाँ. जैसे कि पंजाब किंग्स की पर बॉलिंग, उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो लूपहोल्स तभी दिखते जब भी वो टॉप 4 अपने आप में कम्पीट करते हैं. ट्रू. तो वो लेवल ऑफ क्रिकेट जो उस पे ऑपरेट कर रहे हैं वो है. हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है. नहीं, पर मुंबई नीचे जा रहा है मुंबई तो का नहीं आप बोल रहा हूं अपना मैं, ऊपर बट रखो. तुम्हारे बाजू में जो है, आई थिंक दे माइट जस्ट डू इट दिस टाइम. आई थिंक. बट शांतनु, इसमें पता है बात क्या है? क्या फर्क है? जो टॉप 4 है या इवन गुजरात टू एन एक्सटेंट और बाकी जो 5-6 टीमें हैं, जो टॉप 4 है ना, उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी फाइंड कर लिया टूर्नामेंट में. और बाकी टीमें अभी तक ट्वीक कर रही हैं. किसी का ओपनिंग कॉम्बिनेशन सेट नहीं है, कोई बॉलर्स अंदर बाहर कर रहा है. और यही, जैसे मैंने दिल्ली का एग्जांपल लिया, एक छोटे से कॉम्बिनेशन की वजह से वो रह गए थे लास्ट सीजन. तो जो टीमें कंसिस्टेंट लाइनअप्स खिलाती है ना, उनके चांसेस और बेहतर होते जाते हैं. और इन चारों टीमों ने अपनी बेस्ट 11 ढूंढ ली है. बेस्ट 12 या 13, आप जो भी कहना चाहो. Shantanu, you on episode 1, I believe, you spoke about Donovan Ferreira, and you were very, and man, he has really lived up. Yes. And good call, bro. I remember having the conversation with you off camera before we started the first episode, and he's come to life, man. उसका एक यूएसपी था क्योंकि वो बॉल 1 से एज अ सेट प्लेयर आता है, और आरआर को सिर्फ उसे फेथ दिखाना था उस पे, अदर देन हिटमायर नहीं चल रहा. आई डोंट नो क्या चल रहा है उसका, लेकिन फरेरा ने जब भी नीडेड था तभी उसने काम किया. लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट अनदर गाय फ्रॉम आरआर, शुभम दुबे. ब्रिलियंट. शिवम दुबे का काम कर रहा है वो, क्योंकि भले ही उस स्कोर कार्ड में दिखेगा कि फरेरा ने 50 मार के मैच खत्म किया है, लेकिन शुभम दुबे ने प्रेशर ले लिया पूरा. सो आई थिंक ही इज द गाय जो लास्ट ईयर से वो लोग उसे भेज रहे थे, वो ही कुडंट कैपिटलाइज, ही कुडंट फिनिश द गेम फॉर आरआर. लेकिन इस टाइम वो जो कर रहा है, मुझे लग रहा है वो फीचर होना चाहिए 11 में. No, they actually got the right combo last time. क्योंकि 7 में जडेजा, 8 में आर्चर, क्या बैटिंग है उनकी. या They had to get another batter. Yep. But वहां पर एक बॉलर ड्रॉप हो जाता था, so they got in Shanaka. So I think they got the right combo. No, not right combo according to bowling. Bowling. How the hell Ravi Bishnoi is out? वो था. You cannot. रवि बिश्नोई आउट कैसे हो रहा है भाई? टेल मी. यशराज पुंजा अच्छा बॉलिंग कर रहे बोलेगा. मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, बॉलिंग में भी होल्स है, बट आपने बैटिंग का बोला कि आर्चर और जडेजा का. शनाका के पहले हिटमैर आ रहा था, लाइनअप सेम है, जस्ट स्वॉप ऑफ की हिटमैर बाहर गया एंड शनाका वापस आया. एंड बाबा एंड आपके बाद से मैं डिसएग्री कर रहा हूँ कि टॉप 4 ने अपना टोन सेट कर लिया. पहली बार राजस्थान का स्पिन अटैक का क्या चालू है, जडेजा कभी बॉलिंग नहीं डाल रहा है, कभी 3 ओवर डालता है 8 रन देने के बाद, कभी रवि बिश्नोई 1 ओवर डाल रहा है, फिर अगले मैच ड्रॉप होकर दूसरा बॉलर आ रहा है. तो स्पिनर्स पे ट्रस्ट ही नहीं है. एंड आई थिंक राजस्थान का ज़्यादा दिख गया, बट आई थिंक काफ़ी टीम्स का दिख गया कि अपने स्पिनर्स पे भरोसा नहीं कर रहे, कि लेफ्टी को लेफ्टी नहीं डाल सकते. बहुत मेजर इशू है कि इवन वो कोलकाता वाला जो मैच अगर आपको ध्यान में agree, completely agree. You think it's the pitches in the IPL? No. Or you think it has to do with captains. I mean, Pat Cummins is also not an aggressive captain when it comes to spinners. Okay. क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग में खुद बॉलिंग डालता है, तो उसका एक आइडिया है फास्ट बॉलर्स कैसे चले जाता है. बट आई सीरियसली फील, मेरे को सारे मैचेस देखने के बाद ये लगा कि ईशान इज अ बेटर हैंडलर ऑफ बॉलर्स देन पैट कमिंस. ईशान ने अच्छा हैंडल किया स्पिनर्स को. एंड इफ यू लुक एट कैप्टनसी इशू, नॉट हार्दिक पांड्या बट रियान पराग क्या कर रहा है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. 8 बॉलर्स यूज किए उसने उस दिन. अपार्ट फ्रॉम वेटिंग. एग्जैक्टली. एंड एक ओवर एक को भी दे देता भाई. एक ओवर एक ग्लव के साथ क्या एक ओवर एक स्पिनर को दिया उसने वो मैच में एसआरएच के साथ. सो यू विल हैव टू शो मोर ट्रस्ट इन योर स्पिनर्स. खुद जब बॉलिंग डालने आ रहा है, उसने 2-3 विकेट भी लिया है रियान पराग ने, बट ट्रस्ट बिश्नोई वाज टेकन 10 विकेट्स. तो जैसे कि उन्होंने कहा कि ईशान किशन जैसे बॉलर को यूटिलाइज कर रहा है, वैसे ही जैसे बैटिंग के लिए हार्दिक आया था तो शाके बॉल डाल रहा था, उसको इशारा किया उसने कि वाइड डालेगा तो मारेगा. तो जैसे उसने डाला और मारा तो वो आउट हो गया. तो आई थिंक वो उसका कैप्टनसी आई थिंक वो कंटिन्यू करना चाहिए था उसको.
तो और एक पैट कीपर कमिंस- का एक बेनिफिट भी होता है ना हाँ, ऐसा तो अगर benefit वो भी पूरा सीजन अगर ईशान को अगर कंटिन्यू करते ना तो उसका माइंडसेट बॉलिंग का I think, but get Pat Cummins just as a Pat Cummins पैट को आप कमिंस लेके आओ. yes है, भाई but- साइलेंसर को कैसे वो नहीं बिठाएंगे हो भाई? पाएगा. पार्ट इज पैट, सो दैट इज Sir को साइलेंसर मत बोलो यार. क्यों नहीं पसंद है? क्रिंज है. साइलेंसर यार ट्रॉमा है वो. I get it. I am completely with you. he might be wearing this jersey, Yeah, but in but fact yeah. his heart's blue. I hope at least it is. But listen, guys, this is something that as a huge IPL fan, I'm not enjoying. And I saw someone with a piece of paper कि has 220 become the new 160, 180? Like it's bowlers के लिए रहम नहीं है. It's become. Are you guys enjoying this sort of cricket? Where 220, and you guys are leading that charge of scoring 200 for fun. Are you enjoying this kind of IPL cricket? You don't mind it? आई डोंट माइंड इट, बट हाँ कभी कभी लगता है कि यार एक और छक्का आ गया, चलो ठीक है. ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि वी डोंट, आई पर्सनली डोंट enjoy whatever you want to put it in whichever way, but मुझे लगता है कि see it has to do with a lot of factors. ये सिर्फ cricketing factors ही नहीं है. There are lot of commercial factors also which are involved. T20 as a game when it came up, it was a batsman's game. But how is the commercial aspect in I'll tell you, changing see, the अगर आप- final score of a? अगर आप देखो T20 की, अगर आप ट्विटर एनालिसिस भी, एक्स एनालिसिस भी कर लो और आस्क फैंस ऑल्सो, दे जनरली लाइक बीइंग बॉल बीइंग हिट. उनको छक्के पसंद है, उनको चौके पसंद है, उनको रन्स पसंद है. ठीक है, यू माइट वन ऑड मैच आपको 160 वाला एक अच्छा मैच मिल जाएगा. सो वी वर डिफेंडिंग लो स्कोर्स ऑल्सो. पहले का बात करना है तो 2017 फाइनल का भी बात करते हैं. फिर 130 भी डिफेंडेड एंड हाँ वो ठीक है, दैट वाज इन That is हैदराबाद. my favorite game of cricket. Yeah, true. Best true. final ever. Again you The see. longest named team in the history of Yes. mankind. Yes. Again, that is what I'm telling you. PSG. Two teams were fighting to win at that point of time. Right. So if the quality is good, then cricket is good. मेरे को लगता है कि यार चक्कों की वजह से डेथ ऑफ क्रिकेट बिल्कुल नहीं हुई है. And it is actually getting in more people to get to the game, to watch the game, and there is more discussion happening. वो ये कि अच्छे प्लेयर की क्वालिटी ऐसे 160 180 के पे इस्तेमाल हो. ठीक है, T20 में तुमको 220 पहले भी एक वांकड़े था 200 वाला ग्राउंड, एंड चिन्नास्वामी 2 ग्राउंड पहले भी थे. अभी हैदराबाद में 260 270 280 ये साल कम बना, बट इजंट इट इनसेन कि बॉलर क्या करेगा. नहीं, बट अभी मुझे क्या He said he doesn't mind. Baba, go on, Shant. I'll take both your takes. Are you okay first of all with? Do you mind having 200 being scored for fun? ऑफ कोर्स, क्योंकि सुनो अभी मुझे ऐसा लग रहा है अगर नहीं होता 200 तो भी बोलते हैं कुछ हो रहा है, उस पे सिर्फ आप निटपिक कर रहे हो यार. अभी इसमें पिच का क्या गलती है? मुझे बताओ पिच का क्या गलती है? नहीं बेचारे bowlers की लग रही है उसकी. ये देखो वो ना, ये क्रिकेट ना गेम ही थोड़ा बैटर ओरिएंटेड है. लेट्स एक्सेप्ट दैट. ठीक है, थोड़ा बैटर के फेवर में ही है ये गेम. ठीक है, अरे T20 क्रिकेट अगर नहीं मारते तो आप बोलते यार कौन खेल ही नहीं रहा है. कम ऑन यार. तो आप ना, मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, अगर वो नहीं होता ना तो फिर भी आप कहते कि यार कोई मार ही नहीं रहा है. ये नैरेटिव है ना बहुत गलत है, क्योंकि क्या है कि अगर खुद की टीम अगर 200 नहीं मारेगी ना तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर खुद की टीम अगर 250 मारेगी तो अगर जो बंदा बोल रहा है See कि how ये- happy he is. हाँ, अगर मैं तो 117 से भी खुश था. अगर इसकी टीम अगर 250 मारती थी तो ये बोलता ही नहीं बात, वो तो सब अग्री करेंगे. इंस्टाग्राम स्टोरी देखो, मैं हर बार जब 250 को मैं गालियां देता हूँ जो अरे तो ए, मुझे story बता- लगाओ भाई का. भाई ने बोला मुझे story. नहीं मुझे Story लगाओ. मुझे बता कि अगर T20 में बैट्समैन का माइंडसेट अलग होता है और ओडीआई में बैट्समैन का माइंडसेट अलग होता है. जो तूने पारी निकाली 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की, तो उसमें बैट्समैन भाई पहले रोहित शर्मा ने क्यों ओपन इतना फास्ट अप किया कि भाई दूसरे लोगों को सेट होने का मतलब एक अच्छी ओपनिंग टेम्पलेट मिल जाए भाई. और उधर तो अगर देखेगा वैभव सूर्यवंशी क्यों स्मैश करता है भाई, कि उसको उसका माइंडसेट मालूम है कि T20 फॉर्मेट है, उसको कम से कम रन जितने उसके बल्ले से हो सकते उतने मारने ही है उसको. फॉर द फर्स्ट 16 years of T20 क्रिकेट इट वाज अ 160 का गेम, इवेंचुअली 200 220 तक गया. 2024 से जब से वो पैट कमिंस का सर्ज आया, एंड पिच पैट कमिंस के सर्ज के साथ सारे पिचेस भी फ्लैट होने लगे, लिटरली 250 260 280. तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम यार इसमें मैं बताता हूँ कुछ फैक्टर्स क्या है. जब T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई ना तो एनालिटिक्स इतना बड़ा पार्ट नहीं था गेम का. अभी क्या एक एक बॉल एक एक प्लेयर कहाँ डाल रहा है, उसका वीक जोन क्या है, बैट स्विंग पे इतना ज्यादा काम होता है. आजकल आप देखते हो कि फेयरलेसनेस क्यों आई है. एक तो फेयर ऑफ फेलियर खत्म हो गया प्लेयर्स पे. ठीक है, पहले क्या होता था, अरे यार ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ग्रैब नहीं किया, फिर शायद खेलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलते थे. आज पता है भाई इतने सारे टूर्नामेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फेयर ऑफ फेलियर खत्म हो चुका है भाई. I have no problem with this 280 250 300 wickets. I have one problem with one rule. उसको हटा दो. Which is Impact. Impact को हटा दो, खत्म. agreed, bro. Since agreed. So to any bowlers, upcoming bowlers watching out there, just sorry Yeah. guys. Let's quickly talk about Rinku Singh. Like I said last episode, I think somebody has stolen his money because he's back to his old self. He is he for you guys captaincy material in the future or no? Not Baba? yet.
शांतनु, no, not yet. आई थिंक नॉट येट, लेकिन मुझे एक अच्छा लगा कि आई थिंक मैनेजमेंट ने उससे बात करी है. पहले हमें दिखाई दिया कि उस पर फेथ ही नहीं था. उसके पहले अनुकुल रॉय को बैटिंग को भेजा था जब ही वॉज नॉट इन द फॉर्म. अभी वो अपने नंबर पे खेल रहा है, 2 बैक टू बैक 50s, एक 80 इनफैक्ट. सो रिंकू सिंह को अगेन हार्दिक पांड्या जैसे इशू है. आप अगर आपको इसे एज अ प्लेयर यूटिलाइज करना है तो और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो. ठीक है. सो रिंकू मुझे ऐसा लगता है ये मस्त फ्लोटर है. Let him go around stealing bats from other players and keep hitting. एग्जैक्टली. ऐसा टाइम दूर नहीं है जब वो अपने बैट्स दे देगा दूसरों को. Chance ही नहीं. नहीं, Chance ही नहीं. आई थिंक हो जाएगा. No matter how much money that man, I don't think he's going to get. He'll still go, भैया. Also, you have to realize कि वो किस mental state से आ रहा है. true. He just lost his father यार, और फिर भी आके वो अभी इतना consistently खेल रहा है. रिसेंटली मतलब देखोगे तो मतलब एक हम्बल पर्सन है. अभी रिसेंटली एलएसजी के साथ मैच हुआ था तो भी मतलब मोहसिन खान वगैरह उसको बैट मांग रहे थे. तो मतलब बंदे में बस पोटेंशियल बहुत है. जस्ट लाइक अभी वैभव सूर्यवंशी जैसे ओपनिंग में ताबड़तोड़ पारी खेल सकता है, वैसे रिंकू सिंह फिनिशिंग में इंडिया के लिए और बड़ा रोल कर सकता No, है. my question is, as a captain, do you reckon he's captaincy material? फॉर केकेआर यस, बट इंडिया के चांस ही नहीं है, बहुत लंबी लाइन है. बाबा, what's your take on? यार अगेन जब तक देखेंगे नहीं हम जान नहीं पाएंगे. No, but I'll tell you what. As from a macro perspective, just looking at him as a player, do you think he would potentially make a? You know, sometimes you can just see a player बोल सकते हैं यार इसमें है वो leadership qualities. Like I feel Suryavanshi eventually could become a future captain for Team India. Rinku, I'm not too sure. I want to get your take. Just what you see right now. Do you see any captaincy? अगर वाइस कैप्टनसी दिए तो मैनेजमेंट को लगा होगा कि कोई ना कोई लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप ग्रुप का अगर वो पार्ट है. एंड अगर उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे भी अपनी टीम की कहीं ना कहीं अगर कैप्टनसी की होगी तो वो एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली काउंट होता है. हमें ना उस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए कि यार बंदा क्या बातें करता है, रील्स पे कैसा दिख रहा है, सोशल मीडिया पे क्या है. वो अलग पर्सोना होता है. फील्ड पे एक प्लेयर अलग होता है, उसके इनपुट्स अलग होते हैं. तो अगेन मतलब आई एम डिवाइडेड. मैंने रिंकू को एज सच मैंने इमेजिन नहीं किया है. I agree with that perception. That जैसे for example Arshdeep Singh में he's too free flowing and chilled out. बट ही इज वेरी इंटेंस ऑन द फील्ड यार. I'm talking as a leader. He might be intense, but because I feel your social media, and I might be wrong, is an extension or an exaggeration of who you are, but that is your core. ऐसे you will never see a Sachin Tendulkar is खैर बहुत पुराना, but Virat Kohli, who loves this, but you know. यार विराट के तो ऐड ही आते हैं बस सोशल मीडिया पे. विराट तो Fair enough. देखा ही टाइम हो गया नॉर्मल पोस्ट. I feel like KKR can take a small punt on Rinku Singh. या डेफिनेटली. Let's end with someone I think everybody in this room, probably everyone in this country is raving over is a 15-year-old boy who has just taken the world by storm. I'd given this stat last time that the person who's hit Jasprit Bumrah for the most sixes in the power play is Virat Kohli, who's hit him 4 in 50 or 45 balls. 5 बॉल में 2 छक्के मार दिए यार बंदे ने. He's scored what 4 centuries in 9 odd games. Do you see him as top 2 orange cap में 1 and 2 or you think he'll slip somewhere? आई थिंक ऑरेंज कैप तो आप छोटी बात कर रहे हो. Okay. आई थिंक वो ब्लू जर्सी उसे जल्दी मिलने वाली है. आयरलैंड टूर आ रहा है, जिम्बाब्वे टूर आ रहा है, उसे ब्लू जर्सी मिलने वाली है. और वैभव सूर्यवंशी का मुझे सबसे अच्छा जो चीज लगी है वो है जो उसने अपने लिए जो बार सेट की है. मैंने किसी प्लेयर को नहीं देखा है जो 15 बॉल में 43 मार के ऐसा डिसअपॉइंट होके जा रहा है जैसे उसने डक किया. सो वो अपनी ही एक्सपेक्टेशंस है उसके, और बंदा बॉलर को खेल ही नहीं रहा है, बंदा बॉल खेल रहा है ऐसा सब लोग बोल रहे हैं. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जितना बड़ा बॉलर आता है ना वो उतना बड़ा छक्का मार रहा है. Reckon it's too early for him to play in the blue jersey? यार मैं बस एक चीज बोलूंगा बिफोर आई आंसर दिस माइट बी द ओनली सीजन इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल जहां पे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर हो सकता है. सेम प्लेयर जीत जाए. मतलब जैसे कोपा ट्रॉफी और बैलन डोर लमीन यमाल जीत जाता ना वैसे. बट जोक्स अपार्ट आई फील हम ये सोच रहे हैं कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं हिल जाए उसका, इंडिया खेल ले फेलियर आ जाए तो कहीं ना कहीं मतलब वो हो सकता है थोड़ा सा शेक हो जाए उसका कॉन्फिडेंस. ये तो भाई सामने वाले का कॉन्फिडेंस हिला रहा है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल बॉलर्स हैं. मतलब हम क्या बोल रहे थे, अरे यार अभी तो इसको मारा है भुवनेश्वर और हेजलवुड को मारे तो देखेंगे, अच्छा इनको मार दिया बुमराह को मारे तो देखेंगे, अच्छा हाँ कमिंस को. अच्छा अब अनबीटन टीम आई है ना पंजाब किंग्स, अब उसमें मार्को यानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, मतलब शेन बॉन्ड का रिएक्शन ऐसा है. अगर शेन बॉन्ड को किसी ने खेलते देखा है प्राइम में, मेरे हिसाब से क्रिकेट का वन ऑफ द बिगेस्ट व्हाट इफ है शेन बॉन्ड. अगर इंजरी नहीं होती तो शायद वो ग्रेटेस्ट एवर फास्ट बॉलर बोलते. अगर वो बंदा इंप्रेस हो रहा है वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट से और श्रेयस अय्यर जैसा एस्ट्यूट कैप्टन हेल्पलेस फील कर रहा है, इतना डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है ना. मेरा पता है क्या सपना है एक,
कि अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी एक मैच में ओपन कर रहे हैं इंडिया के लिए फ्लैट ट्रैक पे, बिल्कुल जैसा जैसा पसंद नहीं है ना तेरे को, बिल्कुल एकदम मेरे जैसी गंजी विकेट, दिल्ली या फिर बैंगलोर में और खिला। दोनों का बस एक कैच छूट जाए, एक एक कैच, फिर मैं देखना चाहता हूं कि क्या तबाही मचाई। 3 लाख 405 450 रन मार दिया 20 ओवर में। मैं तो अभी बोल रहा हूँ, मैं फिलहाल के लिए तो सूर्यवंशी को अभी भी रेट नहीं करूंगा जब तक वो ब्लू जर्सी नहीं पहनेगा तब तक। ठीक है यार। उसके बाद उसका इम्पैक्ट दिखेगा, मैं बता रहा हूँ क्यों। तो ये बात तू प्यार से भी बोल सकता हाँ, है। डरा क्यों रहा है, bro? Oh my God! नहीं, क्योंकि लोग रेस्टिंग फेस मैं बताता हूँ, MI वाला है भाई। ये होता है, ये होता है यंग किड को तुम लोग चढ़ा दोगे तो वो स्पॉइल हो सकता है। अभी उसको इतना कह दिया, इतना चढ़ा दिया कि सब चलो अब मार देगा, सेंचुरी मारेगा, 200 रन 250 रन, बाबा बोल रहे कैच छोड़ा 400 सब बन जाएगा। इतना नहीं उसको कॉन्फिडेंस देना अरे भाई चाहिए। वो मार भी तो रहा है ना पर हर मैच में, Confidence इसको दिया नहीं है। कंसिस्टेंसी ऐसा भी नहीं कि वन ऑफ है। भाई मुझे ये बता, वर्ल्ड कप फाइनल में जो उसने इनिंग्स खेला है बड़ी Impactful है। वर्ल्ड मुझे कप फाइनल तू है। इसका एक वीकनेस बता दे, तू क्या वीकनेस लगता है तुझे? आइसक्रीम रात में वेपिंग ध्यान पड़ा से दूर रख दो। चेक करने के लिए मैं बता सकता हूँ, ऑन अ फास्ट पिच बैक ऑफ अ लेंथ अगर आप क्रैम कर देते हो उसको रूम के लिए, हिंगे वाला, हिंगे वाला। चल, एंड ही डिड स्ट्रगल विद दैट इन द और वर्ल्ड वो कप इमर्जिंग एशिया कप में भी एक दो बार वैसे आउट हुआ था। बट नेक्स्ट मैच में कैसा मारा इसको? मैं वही कह रहा हूँ, तो वो निटपिक करने या, वाली या, बात या, या। भाई, कौन से प्लेयर में नहीं होती है भाई कमियां यार। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि तू बोल रहा है कि इसको चढ़ा के ही रखना चाहिए, उससे अंडर 19 में मारा, आईपीएल के जो इंडियन के जो फास्टेस्ट सेंचुरीज है दोनों उसके नाम है। ऐसा नहीं लगता तुझे कि if उसको नहीं खेला वो टूट जाएगा कि मैं इतना खेल रहा हूँ फिर भी डेब्यू नहीं मिल रहा है? क्यों लिटरली वो खेल रहा है, कि ऐसा नहीं कि उसको फास्ट ट्रैक करे, वो उतना मार के ले रहा है कि मजाक बात हो, 400 रन मारा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अकॉर्डिंग टू यू फॉर हिम टू गेट दैट इंडिया जर्सी उसको और क्या करना है? या गुड क्वेश्चन। ये रिफ्रेश कर दिया मैंने, उसी का ही क्वेश्चन। ये रणजी का 100, स्मैट का 100 एंड आई थिंक IPL के 200 हो गए। आईपीएल के 200, 35 बॉल 36 बॉल, और हर बॉलर को मार दिया। सबको ना सब कर दिया। और क्या चाहिए? मेरे हिसाब से उसको ऐसे बोल रहे हैं ना, जैसे एक टूर आयरलैंड टूर या फिर जिम्बाब्वे टूर की जरूरत है, उसके बाद और 1-2 साल उसमें तो इंडिया जर्सी में खेलेगा ना। मैं वही बोल रहा था ना, इंडिया मैं बोल रहा हूँ कि उसको जब तक वो छोटी भी नहीं बोलूंगा, आयरलैंड जिम्बाब्वे की टूर्स मिलेंगे ब्लू जर्सीज में, वो जब 1-2 साल कंसिस्टेंटली और परफॉर्म करेगा, जैसे अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना, क्योंकि और 1-2 साल की जरूरत है। उसका ओपनिंग पार्टनर जो है वो भी लगातार परफॉर्म ही कर रहा है, लेकिन जैसा आपने बोला उसको भी स्पॉट नहीं मिल रहा है। But bro, तो you're इतना confused. But you said something right now that your content. You said I will not rate him till he gets an India jersey. But India jersey he'll wear to play against Ireland and Zimbabwe, na? So you figure out what you're trying to say first. Because you said I won't rate him till he gets an India jersey. Now you're saying he will get an India jersey and perform well against Ireland and Zimbabwe, which are not the biggest. अच्छा, teams. एक हाइपोथेटिकल सिनारियो, जिम्बाब्वे से हमारा होता है 3 T20 का सीरीज, उसमें वो 2 मैच में रन मार देता है, एक में 50 मार दिया, एक में 80 रन मार दिया, फिर जायसवाल खेलेगा कि नहीं? जयसवाल है ही नहीं रडार में। अभी सूर्यवंशी की बात हो रही है। हाइपोथेटिकल मैं बता रहा हूँ, आप बताओ मेरे को, जायसवाल रहेगा उस सीरीज में? मुझे क्या पता। अरे कम ऑन मेरे को एक चीज बताओ, इफ सूर्यवंशी खेल रहा है, ठीक है बाबा, सूर्यवंशी खेल रहा है, उसके साथ जायसवाल भी खेल रहा है, ओपनिंग पैर है इंडिया के लिए 3 T20 के लिए, जायसवाल भी परफॉर्म करता है, तो आप प्रीफर किसको करोगे, सूर्यवंशी को या जायसवाल को? किसके लिए, कहाँ पर प्रेफर? इंडिया के लिए कोई भी स्क्वाड में फ्यूचर, मतलब ऑस्ट्रेलिया की T20 टूर हो गई, इंग्लैंड T20 टूर हो गई, उसमें तो सैमसन और अभिषेक खेलेंगे। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन, जायसवाल का बात निकला है तो बट उसने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। और एक क्वेश्चन पूछ दिया उसने मेरे सवाल का, मैंने सिंपल सवाल पूछा है कि फॉर अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर हिम टू प्ले फॉर इंडिया उसको और क्या करना है? एक और आईपीएल सीजन All grow old. कंसिस्टेंसी नहीं, आईपीएल सीजन खेलना है, एक और आईपीएल सीजन ना, एक और आईपीएल तो ये बोलना भाई, तो ये बोलना, ये बोलना जब वो 17 का हो जाए तब दे उसको। So what you meant? Okay. So you'll rate him when he does this even more consistently. और मेरे पास एक और तगड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है कि अभी अपना टेस्ट टीम का थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है, कि हाँ बहुत जबरदस्त डाउनफॉल चल रहा है कि हम होम में अच्छा नहीं कर रहे, जो भी है, वट एवर द रीजंस आर। आई फील ठीक है T20 का तो उसको मिलने ही वाला है डेब्यू, बट ऑन अ लॉन्गर रन, ठीक है, ऑन अ लॉन्गर रन थिंक अबाउट इट कि यू ग्रूम वैभव सूर्यवंशी एज अ टेस्ट भाई एक ही तो चीज अच्छी है हमारे टेस्ट टीम में, ओपनिंग पे भूल जा राहुल और जायसवाल। प्लीज नहीं। On that note, time for the quiz, guys. It's time for the quiz. I've been waiting since the episode started because I heard some shit about these guys, bro. These guys have come prepared.
No, Okay. no. प्रिपेयर मारे With their brains, they got the babs in the house today, boys. So we are moving to the quiz. Simple. I'll explain. You guys are recurring, so I'll explain you the rules. 5 questions each. I go back and forth. आप दोनों teams को एक steal मिलता है. ठीक है? So even when I'm reading out the question, you can steal it. Right answer पे 1, steal पे 2, and yeah. तो कोई भी आंसर कर सकता है कोई भी. No, yeah, it's not. It's you guys can discuss. ओ ठीक है Yeah, it's not correct. We've changed it. We've अच्छा वो tweaked it. यूएफए और प्रीमियर लीग है क्या वो फुटबॉल वाले में अलग रूल है Football में अलग है. It's individual. ऐसा नहीं है, कोई भी आंसर कर सकता है. Yeah, yeah. कोई भी आंसर. You can discuss. 10 seconds. लेकिन will you ask us As specific a question team, to as a us? team, yes, as a team. चलो Correct? Okay. चलो बाबा है हमारे पास Steal के टाइम ना 100% श्योर हो गए तो steal. Okay. Starting with my esteemed guests. Start off with which batter scored a century on his IPL captaincy debut? ये recent हुआ है. ये पहले नहीं हुआ. एक सेकंड. I think 10, कुछ भी. Countdown का है क्या? 6, 5, 4, 3, 2, 1. हो गया 1 हो गया. It's you guys. I mean, I'm gonna get a point, but anyone care? Sky? Sorry? Sky? Sky. No, Sanju Samson. Sanju Samson. यार आया था मेरे दिमाग में Was अरे scored. यार मेरे जबान पे ठीक है, it's okay. उनको भी. पंजाब के अगेंस्ट मारा था Lads, 0 out of 1. Boys, जीरो okay, guys, another first for you guys. The first player to score a century in the IPL playoffs was. Oh shit! Go on, bro. मुरली विजय In your face. In your face. You didn't even wait for me to say right or wrong. Qualify हो रहा है सर. Dos cinco. Okay. All right, lads. A steal, a sneaky steal. You guys are done with your steals now, right? Right. Among the 10 IPL teams playing currently, which is the only one whose captains, any of them, have never scored an IPL 100? अभी currently captains में. No, in the history, no captain for that team has ever scored a century. श्रेयस अय्यर No, which team? Team. रॉन्ग पंजाब किंग्स Team. That unfortunately is wrong answer, sir. Do you guys care to? One of you guys is wearing the team. क्वेश्चन क्या है मतलब KKR. कैप्टन No KKR captains ever scored a century. ओ अच्छा ओ दैट का क्या अरे शिट ओ दैट अच्छा, that way we अरे understood हमने the क्वेश्चन ही question. गलत समझ लिया नहीं actually. करंट कैप्टन में से किसने No, सेंचुरी he asked me. I said ever. Anyway, So, yeah, that's it's still 2-0. You guys are up, guys. It's getting close. You guys still have a steam. ठीक है Right. केकेआर के कुछ captain. Which fixture saw the only double super over in the IPL? Shit man MI versus Punjab 2020. Indeed, correct, my friend. Fantastic. 2-1. All right, boys, and you still have a steal left. Let's go. Which overseas player has played the IPL final for 3 different teams? शेन वॉटसन You are absolutely right, buddy. Shane Watson is the right answer. 3-1. Let's move on. In which year did the IPL see its first tied super over? I repeat, in which year did the IPL see its first? You guys have finished your steal. Yeah. First tied super over. And you guys can go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, तो वही तो क्वेश्चन 4, 3. 2010. No. That is not even close, my friend. Unfortunately, that is the wrong answer. Do you guys want to take a shot? Yeah, No point. Steve Smith वाला. Against KKR. राजस्थान versus KKR. Rajasthan versus KKR. Well done, buddy. 2014. Yeah. Yes, 2014. And RR. टाइट सुपर हो रहा है What? बाउंड्री से जीत गए Boundary points count से. Unfortunately, no point. समझा पहला We don't care. All right, boys. To you lot now. He has scored an IPL century, but hasn't yet scored 200 runs in the tournament. Who is he? Still, go on. Harry Brook. वाह वेल डन You moved before the right. चलो यार That is bang on, buddy. Fantastic, right? And that was a steal, so you guys are back in it. 3-2. 3 all, my bad. 3 all. Okay. To you lot now.
which Indian player has played for the most number of IPL franchises? करण शर्मा, विजय शंकर, 10, 9, नहीं सरज, 8, करण शर्मा, 7, करण शर्मा, 6, 5, 4, 3, करण शर्मा, करण शर्मा, No. विजय शंकर, He's been on the show as a guest, bro. It is Jay Devnath. All right, boys. It's still 3 apiece. This is the closest we've had so far. So well done to everybody. here. Let's go. Last 2 questions, guys. Both of you all have lost your steal, so it's literally 1 question each. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घाई नहीं करेंगे, ओके? Yeah, take your time, boys. All right. Who is the only player in the history of the IPL to have bowled the first and the last over of that same edition? First and last over of the same edition. Yes. लास्ट ओवर और बॉल Over. First over, it'll be the same thing. You know, we won't get a... नहीं तो 2 consecutive finals मुंबई कभी नहीं गया. फर्स्ट एंड लास्ट ओवर ऑफ सेम Same season चलेगा. फर्स्ट मैच थोड़ी होगा मलिंगा, लास्ट ठीक है, फर्स्ट अगर जीता होगा कुछ भी मलिंगा. It is Josh Hazelwood. नहीं यार, नहीं आता है. चांस टफ वन. Which is why it was the last बट कम डाला यार उसने. 2019 का ऐसा ध्यान था कि लास्ट हाँ वही सोच रहा था. फर्स्ट मैच अगर मुंबई का First match CSK RCB. 3 apiece. I was not ready with that. You guys get this, you guys win it. You dirty dogs. Are you guys ready? Oh boy. Can it happen again? Can you guys fight with it? More tough था यार. 4 players to get out obstructing the field in the IPL. Recently, obviously, was Raghuvanshi. Name the other 3. नहीं आ रहा, नहीं आएगा. So I'll tell you what. I'll take it easy on you. That's extremely tough. Name me 2. ये 2 तो हो जाएगा यार. Name me 2. Still. Name me 2. I'll give you a hint. He literally gave one of the. I'll zip it. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ding, 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 ding. Do you have an answer? यूसुफ Go on. पठान Yeah. 1 Yeah. एंड जडेजा. That is actually correct, buddy. एक बोलो. No, I said give me 2 out of 4 now. Well done. No, not against you. Well, not against. I was hoping that you guys made this low. But time is done. As these wars keep going on, guys, this is astounding. Never in all my years of broadcasting have we had one group of people annihilate another group. This has been fantastic. And guys, do you guys know who the third player is by any chance? I only asked you for. It was. You guys know? हमें पता हो तो पॉइंट मिलेगा. वहाँ कौन मिलेगा? अमित मिश्रा. Amit Mishra was the last player. All right, guys, this is crazy. Not in my many years of broadcasting have I seen one group of people annihilate another group. This is the 5th episode. 5 wins for you boys. This has been absolute carnage. My name is Chinmay Sharma. This has been an honor. And guys, भूलने की आदत है. Keep watching and subscribe to Cover Drive.